Good morning, students. Today I am going to teach a lesson, The Necklace, written by Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Uh, he's a short story writer. Uh, this is your seventh lesson in Footprints Without Feet, The Necklace. Now I'm going to tell you something more about this lesson because this lesson is totally based on the necklace. The story begins with a lady whose name is Malinda. Whose name is Malinda. Malinda was a pretty lady, pretty beautiful lady, and she wants that she would live happy life. She would live happy life, and she would live in comfort. When she had got married, his dream has totally destroyed because her husband was a clerk, was a normally clerk. Her husband was a clerk, and she had disappointed that she would not live any life. Luxurious life. She wanted, but it can't be possible. She always told to her husband that she would want to buy some jewelries, dresses, etc., etc. But her husband told him that it is not in our purchasing, so we should not buy it. And after married, they could live happily life, but she had a good thought in mind that she would live a happy life. She would live a luxurious life, rich life. One day, her husband, when returned from the home, he told her and put it an envelope in his hand that this is an envelope to you to give to go to a party, rich party, very famous party. It is an invitation from a very rich person who is known for his richness, and we are one of those who get this envelope. Then she noticed that it is a envelope to invitation from a rich family. But she hesitated. See that how can I go there? How can I go there? Because I don't have expensive, I don't have good dresses, I don't have good uh, sandals, I don't have good necklace, etc., etc., jewelry. Then her husband, who was a clerk, he told her that he had saved some money for to buy a gun because her husband is fond of hunting, and in hunting he wants a gun to buy, and so that he saved some money, almost 400 francis. Francis is a currency. फ्रांसिस जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे वहाँ पे फ्रांसिस चलता था, तो फ्रांसिस, तो 400 फ्रांसिस जो उन्होंने बचाए थे वो कहता है कि मैं आपको दे दूंगा और उससे आप अपनी ड्रेस ले लीजिए, ठीक है। वो कहती मैं ड्रेस ले लूँगी, लेकिन व्हाट अबाउट माय ज्वेलरी? अब ज्वेलरी कहाँ से लें? अब ज्वेलरी कहाँ से लें? तो ज्वेलरी के लिए वो सोचती है कि जो उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर, उससे मैं कुछ
ज्वेलरी एक दिन के लिए उधार ले लूँगी, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड थी, ये काफ़ी लंबे समय से फ्रेंड थी, तो मिलिंडा की फ्रेंड थी। तो वो कहती ठीक है, मैं उससे ये उधार ले लूँगी और वो एक दिन की बात है, मैं अगले दिन उसे दे दूँगी। ठीक है, उससे वो जाती है और मैडम फॉरेस्टियर से वो नेकलेस ले लेती है। नेकलेस लेने के बाद वो कहती है ठीक है, मैं इसे कल लौटा दूँगी। उसके बाद वो घर आती है, ड्रेसअप होती है। ड्रेसअप होने के बाद वहाँ जाती है पार्टी में। पार्टी में काफ़ी अच्छा माहौल था, वहाँ काफ़ी पार्टी में काफ़ी अच्छा समय बिताती है। उसके बाद अब उसको आना होता है, तो आने होने के लिए वो कहती है कि मेरे पास अब आने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि वो अकेली गई थी। ठीक है, आने के लिए कर, तो उसका हस्बैंड कहता है कि कोई गाड़ी कर लेते हैं, कैब कर लेते हैं। कैब मतलब कोई कार वगैरह कर लेते हैं। तो कार से वो ना आके कुछ समय पैदल चल के आते हैं और घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो सोचती है कि देखें मैं कैसा हमारा गेटअप रहा, कैसा रहा। और जैसे ही वो शीशा के सामने बैठती है तो देखती है कि उसका जो हार था वो गायब हो गया। जो हार था वो गायब, वो मिसिंग। अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली थी। तो कहते ठीक है, कहते चलो रास्ते में ढूंढने के लिए चलें, वहाँ पार्टी में ढूंढने के चलें, क्योंकि देखो हार तो काफ़ी कीमती था। जाते हैं वहाँ, देखते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलता। अब क्या करें? अब क्या करें? अब वो सोचते हैं कि अगर मैं फॉरेस्टियर को बताएंगे मैडम अपनी, तो वो क्या सोचेंगी बताइए कि हमने इनको सामान दिया और इन्हें गुम कर दिया। तो सोचते हैं क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम उसी हार से मिलता जुलता कोई हार बाज़ार से लेके इनको दे दें। ठीक है, अब वो हार उनसे लेके तो बाज़ार जाते हैं। बाज़ार में देखते हैं तो वैसा ही हार, एक मिलता जुलता हार था, 40,000 फ्रांसिस का आ रहा था। कितने का? 40,000 फ्रांसिस का। अब 40,000 फ्रांसिस उस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा मैनेज करना आसान नहीं था। उन्होंने उससे, जो ज्वेलर था, उससे बार्गेन किया कि हमें ये थोड़ा सा कम का लगाइए, हमें बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें चाहिए यही हार है। मतलब वो ज्वेलर कहता है ठीक है, मैं आपको इसको 36,000 का दे दूंगा, 36,000 फ्रांसिस का, फ्रैंक्स। तो वो एग्री हो जाती है। अब वो 36,000 पैसा आए कहाँ से? तो वो क्या करती है, अपनी घर बेचती हैं, अपना जो जो सामान रहता है वो बेचती हैं, और जो हस्बैंड काम करता है, वाइफ भी काम करने लगती है बहुत सारा। ठीक है, तो वो पैसा इकट्ठा करके और वो हार इकट्ठा उसको दे देती है, और कुछ पैसा उधार ले लेती है बाज़ार से, और हार खरीद के मिसेस मैडम फॉरेस्टियर को दे देती हैं। अब जब फॉरेस्टियर को देती हैं वो हार, तो वो देखती है, फॉरेस्टियर देखती है कि ऐसे हार देखती थी, ऐसे वैसे करके देखती है। तो इनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारी चोरी पकड़ी जाए। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, उस समय इन लोगों का बहुत धक धक जी हो रहा था, ऐसा ना हो कि मैडम उसको चेक कर लें, कि पहचान लें कि ये ऐसा है। लेकिन नहीं, वो मैडम उसको रख लेती हैं। ठीक है, उसके बाद ये चले जाते हैं। अब जो पैसा इन्होंने बाज़ार से लिया था, वो पैसा काफ़ी ज़्यादा था, तो इसके चुकाने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी लंबा समय बीता। ठीक है, और इस दौरान इनके जो जो खूबसूरती पे इनको ध्यान बना रहता था, वो खूबसूरती का ध्यान इनकी नज़र से गायब हो गया, क्योंकि अब इनको लगने लगा कैसे हम उनके पैसे चुकाएं। तो पैसे चुकाने के लिए ये काम, दिन रात काम करते रहे। तो इस दौरान इनकी काफ़ी समय बीत गया, और उस तकरीबन कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, एक शाम की बात है कि ये मैदान में, गार्डन में बैठी हुई थी, और वहीं मैडम फॉरेस्टियर आई और बोलने लगी कि ये हार के बारे में बोलने लगी। फिर उन्होंने बताया कि जो जो हार है मैडम, कि वो हमने आपसे लिया था, वो गुम हो गया था, लेकिन हमने इसको आप बाज़ार से ख़रीदा और दिया। तो मैडम फॉरेस्टियर बोली कि अरे तुमने ये क्यों किया है? तुम मुझको तो बताते, तुमने आखिरकार ऐसा किया क्यों? बोले क्यों मैडम? कहते कि अरे वो हार तो नकली था, और तुमने उसको, नकली तार को घुमा के हमें असली दे दिया। ठीक है,
और फिर वो क्या करती है, वो मैडम अच्छी दिल की रहती है और वो जो हार रहता है उसको उस लेडी को दे देती है और अंत में सब खुशहाल हो जाते हैं। इस तरह से हमारी ये शॉर्ट स्टोरी की जो बुक शॉर्ट स्टोरी ये है, जो कि हमारे जो लेखक हैं गाई डे मौपासेंट ने लिखी हुई है। बहुत अच्छी कहानी लिखी हुई है जिसमें कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कैसे हमें बनावट की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, हमें सच का साथ देना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए गलती हुई थी, अगर उस समय वो मैडम फॉरेस्ट ईयर से बता देती तो क्या इतना परेशानी होती उसको, मैडम मेलिंडा को? नहीं होती। तो इस तरह से हमें ये बताती है कि अगर मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं और गलती हो भी जाती है तो हमें गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, हमें उसको दूसरे के सामने बता देना चाहिए। फिर देखते हैं क्या होता है, जो होगा सो होगा, इसमें हम ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। तो ये हमारी आज की कहानी थी द नेकलेस। थैंक यू।